جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے. اختلاف ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی ان احمد کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک اہم کردار ہے. میں چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان ہے یہ فعال ہو جائے. ہم پارلیمان سے جو ہماری ذمہ داری ہے، چاہے آپ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہو یا اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہو، عوام نے آپ کو اس ہاؤس میں اگر بھیجا ہے کام کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ، اس کام میں مجھے ایک رکاوٹ، ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پڑی کہ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بوائے کاٹ کرے، وہ پارلیمنٹ کے کمیٹی سے بوائے کاٹ کرے، وہ بجٹ کی کمیٹی سے بوائے کاٹ کرے، وہ جوڈیشری کی کمیٹی سے بوائے کاٹ کرے، کہ وہ قانون سازی کی جو کمیٹیز ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں ان سے وہ بوائے کاٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پارلیمان کو فعال دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پارلیمان کے جو ادارے ہیں، پارلیمان کی جو کمیٹیز ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کر کے وہ پارلیمان کے کمیٹیز میں واپس شامل. تو آج کے ملاقات کے موقع پہ آج کے ملاقات کے موقع پہ میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا، ریکویسٹ کیا جو قائدین ہیں ہمارے اپوزیشن کے پارلیمنٹس کے کہ اس فیصلہ پہ نظر ثانی. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلسل کی کوشش رہا ہے کہ جہاں تک الیکشنز کو الیکٹورل ریفارمز کا پروسیس ہے اس میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا، اہم کردار ادا کیا، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے جو بھی امپرومنٹس لے کر آ سکے پاکستان کی الیکٹورل تاریخ میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انیشیٹو سے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں کرا. اس وقت ایک ایسا دور ہے برا جی، چاہے آپ اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھے ہو یا ٹریجری بینچز پہ، ہر کسی کا شکایت ہے الیکشن پروسیس پہ. اور اگر نظر آ رہا ہے باقاعدہ کہ آپ اپوزیشن کی جماعتیں وفاقی حکومت کے اتحادی، وفاقی حکومت کے اپنے وزراء، وفاقی حکومت کے اپنے، اگر سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز میں، الیکشن پروسیسز میں ان کا کوئی تنقید ہے، تو پھر ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم الیکشن پروسیس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جو سیاسی جماعتوں کا، پارٹیسپنٹس کا، لوگوں کا، عوام کا اعتراض ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کم از کم سے ایک پوائنٹ ایجنڈا جس پہ وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں الیکٹورل پروسیس پہ اعتراض ہے، اس پہ اگر وہ پارلیمان میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کمیٹیز میں واپس آ سکتے ہیں، تو شاید ممکن ہو کہ ہم کم از کم اس پارلیمنٹ میں الیکٹورل ریفارمز کا منصوبہ تو ایسے کام کیا جائے کہ ہم اتفاقی رائے سے، اپوزیشن کے ممبرز سے، حکومت کے ممبرز سے کوئی اتفاقی رائے پیدا کی جائے، اور یہ امپریشن دور کیا جائے. اگر یہ امپریشن کہیں بن رہا ہے کہ جو پارٹیز الیکشن جیتتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں، ہارتے ہیں تو پھر وہ اعتراضات، ہم نہیں چاہتے کہ ایسے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، ہم اپنا شکست خوشی سے تقسیم کرنے کے لیے تھے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہوں اور مجھے اپنے کارکن کا لاش اٹھانا پڑے الیکشن کے سلسلے. یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ اتنا چھوٹا سا علاقہ میں الیکشن، وہ بھی 3 فیزز میں یا 6 فیزز میں بانٹے جائیں، اور وہ بھی اتنا مینیج نہ کر سکے، اتنا کم پاپولیشن کا تعداد، اتنے سارے فیزز میں اتحادیوں کے درمیان الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں بھی اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میرا انٹریکشن ہوا with the leaders of the opposition rather than any specific political party، یہ ایک اچھا آغاز تھا. کم از کم میرا کمیونیکیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن لیڈر سے وہ کمیونیکیشن گیپ دور ہو گیا، ہمارا کمیونیکیشن کا آغاز ہو سکتا ہے. اور اس قسم کے جو لو ہینگنگ فروٹ ہے
इस पर मैं चाहता हूँ कि सियासी पार्टीज मिलकर बात करें. इससे जो इससे ज़्यादा कोई एजेंडा आइटम इस वक्त इस मीटिंग के मुताबिक बिलावल साहब ये बातें हो रही है आजकल, बात हो रही है बिलावल साहब जी, बिलावल साहब आजकल बात हो रही है 28वें यानी तरमीम की भी कुछ बात गश्त चलती है, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी लोग बातें कर रहे हैं, कुछ सूबों की बातें चल रही है कि इधर क्या पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, आपका क्या स्टांस है इन दोनों तीनों चीजों पाकिस्तान पे? पीपल्स पार्टी तो वहाँ खड़ी है जहाँ वो हमेशा से खड़ी रही है इन तमाम इश्यूज में. आज तक कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है, ना ही इस पर कोई तफसील हुकूमत की तरफ से हुकूमती जमातों से किसी भी मौके पे ऐसे कोई बात हुआ सिलसिला जब चला. किसने आपको बताया? मैंने बताया ना. जी जी बिल्कुल. 27th अमेंडमेंट हुआ, किसने आपको बताया? क्या हुकूमत ने बताया? पीपल्स पार्टी की तरफ से. मैंने वो मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा सर हम ये करना चाहते हैं. मैंने कहा ये हमारे सामने तो अभी तक ऐसी कोई बात मेरे साथ नहीं की. और सुबह वाली बात, सुबह वाली बात. मैं साहब ये बताइएगा कि दो तीन चीज़ें चल रही हैं. एक नए सूबों के क्याम के हवाले से भी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं, एक उसके बारे में बताइएगा. दूसरा सर आपने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो पैगाम अपना दिया था कि टिकटॉक जो है ना वो शुरू हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई. तो आपसे लोग ये पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आप हुकूमत में भी बैठे हैं, दूसरी तरफ आप वो धांधली की बात भी कर रहे हैं. इलेक्शन भी जो हुआ आपके सामने, पीपल्स पार्टी इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा बनने जा रही है या हुकूमत का हिस्सा रहेगी? जहाँ तक नई सूबे की जो बात है उसका आपने से क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मौक़िफ़ इसके हवाले से दिया है, बार बार दिया है, हर सूबे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में दिया है. और मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम के राय के साथ खड़ी होगी, और जो कदम इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है. हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे. बाकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो तवील अरसे से ये कोशिश में हैं कि उनका आइनी हकूक़ को तस्लीम किया जाए. मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम से होकर आया हूँ. मैं 2 इलेक्शन वहाँ लड़ के हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार के मंशूर पे लड़ के आया हूँ. अब जो जनूबी पंजाब पे कंसेंसस पार्लियामान के थ्रू बना, वो आपके सामने एक कंसेंसस पहले से मौजूद है. उसके भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उसमें किरदार था वो आपके सामने है. आज अगर वो कंसेंसस मौजूद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कंसेंसस के साथ खड़ी है. अगर आज वो कंसेंसस मौजूद नहीं है तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं पंजाब के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर सकूँ. वैसे ही हर सूबा का अपना अपना मौक़िफ़ है. जो सिंध का मौक़िफ़ है आपको पता होगा. तो मैं चाहता हूँ कि अवाम के रज़ामंदी से, अवाम के इनपुट से और इत्तफ़ाक़ राय से जो मुमकिन है वो हो सके. जहाँ इत्तफ़ाक़ राय मौजूद नहीं है, जो इत्तफ़ाक़ राय सियासी जमातें अगर पैदा करना चाहते हैं वो कोशिश भले करें. मैं उनको ना रोक सकता हूँ ना रोकना चाहता हूँ. दूसरा क्वेश्चन भी था. एक सवाल नवीद भाई, इजाज़त भाई आप कर लें, फिर आप भी चलें. अपोजिशन लीडर से आपकी मुलाकात को 2.5 साल तकरीबन लगे और कहा यह जा रहा है कि इस पार्लियामान को चूंकि खतरा है इसलिए ये मुलाकात भी मुमकिन हुई. एक तो ये बताइए कि पार्लियामान को क्या खतरात हैं, किससे खतरात हैं, और क्या बात ग्रैंड नेशनल पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जा सकती है? जहाँ तक पार्लियामान को ख़तरा है, वो पार्लियामान को तो बहुत से ख़तरा हो सकते हैं, लेकिन एक उनमें से ये ख़तरा है कि जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है वो पार्लियामान का वो कदर ना करे, वो पार्लियामान को उस तरीके से चलाए ना, और उस सोच के मुताबिक बाहर के ख़तरे तो अपनी जगह. मैं तो जो अंदरूनी मसले हैं हमारे अपने पार्लियामान को, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. उनमें से एक मेरा ख़्याल में ये जो ऑपोजिशन जमातों का फ़ैसला है कि वो पार्लियामान के प्रोसेस से थोड़ा अपने आप को दूर रख रहे हैं, अगर वो भी दुरुस्त हो जाए वो एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है. जहाँ तक आपके दूसरे बातें उस पर, तो
मैं कमेंट नहीं करूँगा। एक खातून ओपोजिशन लीडर्स के साथ देखा तो आपकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बानी पीटीआई को अल-शफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। देखा जाए तो जो मौजूदा हुकूमत है उनको इस चीज़ से एतराज़ है, तो आपका इस मामले पर क्या मौक़िफ़ होगा? मैंने तो हुकूमत का एतराज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा कि कुछ हुकूमत के वज़ीरों ने और अहम मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदानों ने उन्होंने इस चीज़ को वेलकम भी किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते, और अगर किसी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या इन हाउस तब्दीली होने जा रही है, और अगर होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है? मुझे इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान जो है वो फाल बने। जिस काम के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं वो काम करने में हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैंने अपना एक एजेंडा आइटम, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स होते हैं, और हमारे भी एक ब्रॉड बेस्ड मंशूर है, सोच है, पॉलिसी पोजीशंस है। लेकिन जो मिनिमल पॉइंट एजेंडा है कि अगर हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं, तो इस पे जो भी शिकायत कर रहे हैं, अब ये शिकायत पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं, ये कायदे हिस्ब इख्तलाफ में या पूरा अपोजिशन में जो सियासी जमात में है उनका भी मौक़िफ़ आपने सुना होगा। हमारे मुस्लिम लीग नून के भी दोस्तों का अगर ये मौक़िफ़ है, तो इस किस्म के इश्यूज़ पे हमें एक लाए अमल पार्लियामान के अंदर मेरा वो कोशिश है कि उस किस्म का हम तब्दीली जो पीपल्स पार्टी जीती हुई थी और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की इलेक्शन जीती हुई थी 5 हल्कों में। प्लीज एक्सक्यूज मी, आज़ाद कश्मीर के 5 ऐसे हल्के जहाँ से पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, लेकिन वो रिजल्ट चेंज किया गया या मैनेज किया गया, पीपल्स पार्टी को हरवाया गया, जबकि एक आध सीट जो पीपल्स पार्टी को देनी थी उन्होंने दी। तो आप समझते हैं 5 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जहाँ पे 850 वोट मुस्तरद हुआ हुआ है, 400 वोटों से कर्नल 400 वोटों से कर्नल वकार वहाँ पे जीते हैं। सेम बाकी हल्कों में भी सूरत हाल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसी से रिलेटेड मैं इसको मुकम्मल करवा दूंगा। इसी से रिलेटेड सर 7 सीटों पे इलेक्शन रहता है, हाउस मुकम्मल नहीं है। क्या हाउस मुकम्मल हुए बगैर कायदे वान का इंतखाब किया जा सकता है और वो लीगल होगा? देखो, ये आपकी सवाल तो बहुत अहम है एंड काफ़ी वज़न रखते हैं। मैं तो चाह रहा था कि हम कश्मीर इलेक्शंस को इतना खसास अहम जगह है, इलाका है, 1 साल पहले जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था, तो जो हमले हुए वो शुरू तो हुए तो कश्मीर से शुरू हुए, और उस कॉन्टेक्स्ट में तमाम सियासी जमातों को हम सब का ये कोशिश होता था कि ये इलेक्शंस जितना गैर मुतनाज़ा होता उतना ही बेहतर होता। अनफॉर्चुनेटली जितना ही मुतनाज़ा बना सके हमने बना दिया। आपने ज़िक्र किया वो सीटें जो आप कह रहे हैं, जो आपने ख़ुद कवर किए हैं और आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीटें चोरी की गई। आपने भिंबर का परवेज़ अशरफ का हल्का का जो 800 वोट का जो इशू है उसको हाईलाइट किया। मीरपुर में चौधरी इखलाक का, जावेद भटवानवी का, अगर मैं भूल चौधरी यासीन का, वो तो फिर दूसरा फेज़ में मज़ा का बात ये कि हमने तो अपने एतराज़ात उनको बताए थे कि हमें शक है कि यहाँ इन हलकों में वायलेंस होगा, सिक्योरिटी फराहम किया जाए, यहाँ मुख्तलिफ मुश्किलात पैदा होंगे। वही हुआ। सदर एक्टिंग प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो मेरा कैंडिडेट था मुज़फ़्फ़राबाद पे, उस पर हमला होता है। मेरे जो MNAs वहाँ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, वो इसलिए मौजूद कि वफाकी हुकूमत का पूरा
लश्कर उधर बैठा था, तो मेरा कुछ MNAs ने ये सोचा कि हम भी जाके अपना मॉरल सपोर्ट दे दे पार्टी जो लड़ रहे हैं उधर इलेक्शन, उनको भी गोली लगी। मेरे कारकुन को मीरपुर के फेज़ में और मीरपुर ख़ास के फेज़ में 2 कारकुन मेरे शहीद किया जाए। फिर आप आए भाग के इलेक्शन में, सॉरी पूंछ का फेज़ में। पूंछ का फेज़ में ये था कि तब भी मीरपुर में धांधली करके, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में धांधली करके, फिर भी मुमकिन था कि अगर पूंछ डिवीज़न का पूरा इलेक्शन एक साथ होता कि किसी और का हुकूमत, पीपल्स पार्टी का हुकूमत AJK में बन जाता। वो तो फिर 3 के बजाय 6 फेजेस हो गए। और फिर हम आ जाते हैं आपके आखिरी पॉइंट कि वो 6 फेजेस भी मुकम्मल नहीं और इलेक्शन हो गया है, मुतनाज़ा इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एतराज़ात हर फोरम पे उठाए हैं, उठाते रहेंगे, इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना ज़ोर से और इतना शौक़ से और इतना मुतनाज़ा हुकूमत चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कश्मीर के मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे, और बहुत ज़रूरी था कि हमारा एक ऐसा पार्लियामान आ जाता जिसका मैंडेट होता, जिसका लेजिटिमेसी से होता कि वो कश्मीर के ये इश्यूज़ को, अंदरूनी इश्यूज़ को, एंडेमिक इश्यूज़ को हम एड्रेस करें और हमेशा के लिए एड्रेस करें। वो मौका तो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आता। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। अब कहते हैं कि मैं इनके साथ इत्तेहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे इत्तेहादी समझते हैं? क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो, या आप वो बात छोड़े जो आप गिन ले, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को मुंतखब करने से पहले इनके साथ तय किए थे आपस में सियासी मुआहदे, जो हम हर बजट में इनके साथ अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सूबों के लिए इश्यूज़ उठाएं, क्या वो उनमें से कोई एक चीज़ कर रहे हैं? तो फिर ये जायज़ है कि मेरा पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हमारे इश्यूज़ को, जायज़ इश्यूज़ जो आपने ख़ुद उठाए हैं, उनको कोई अगर ये दूर करने की कोशिश नहीं करते तो हम इस मूड में हैं कि हमने इनके साथ तावन नहीं करना। हाँ, अगर हमें समझ में, हमारे ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और ना ही मुस्लिम लीग नून ने मेरा पार्लियामेंट्री पार्टी से ऐसे राब्ता किया, ऐसे तावन किया, ऐसे कोशिश किया कि कोई एतराज़ात दूर किया जाए। I'll come to you later. कश्मीर के बारे में सर लेफ्ट राइट को छोड़ के सामने वाली रो से सवाल बनता है। सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमने इनको गिलगित दे दिया, तो क्या वो एहसान जता रही है? उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी जब हार जाती है तो धांधली का रोना रोती है, और अभी पीपल्स पार्टी यही कर रही है। कश्मीर में अभी तक पीपल्स पार्टी ने कभी कुछ किया नहीं है, तो कश्मीर इनसे नहीं संभलेगा, और अब हम कश्मीर पर समझौता नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इस पे और कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस समझता हूँ कि खान साहब को सेहत दे, वो जल्द उसका इलाज हो जाए, खैरियत हो जाए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा को, उनके ख्यालात पे मैं इस वक्त He wants to answer question. आईएएस ने भी सूबों के हवाले से बात की है, और इस वक्त मुल्क में हर होटल के अंदर सेमिनार भी चल रहे हैं, सरकारी जो टीवी है उस पर भी इस पे बात हो रही है।
और कहा जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानी तो रेफरेंडम करवा के और कराची को वफाक के हवाले किया जाएगा। इसी में ज़िम्नी सर, ये भी कहा गया है कि सियासी एक one at a time ना, it's important that एक तो जहाँ तक DGISPR की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई अपना इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के मौके दिया। इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया और जहाँ एक ब्रॉड बेस्ड सूबे के हवाले से सवाल पूछा गया। सूबों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ तो क्लियर रहा है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं सूबा नहीं चाहता हूँ जब मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करके आया हूँ और उनका मुतालबा है, बच्चा का मुतालबा है, कोई एक बंदा आपको वहाँ नहीं मिलेगा कि उनको आईनी हकूक़ चाहिए, आप उनको अबूरी कहें, आप जो भी कहें उनको चाहिए। मैं कितने इलेक्शंस लड़ के आया हूँ जनूबी पंजाब में, जो पार्लियामान उनका अपना पार्लियामान ने पास किया है, वो मैं उसका मुखालफत जब तक उनका असम्बली मुखालफत नहीं करता, मैं अपना जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इत्तफाक़ राय से जनूबी पंजाब के हवाले से कहा, मैं उसका एतराज़ कैसे करूँ। जहाँ तक सिंध की बात है, आप गिन लें कितने करारदाद पास हुए हैं सिंध असम्बली में। मैं अगर पंजाब का असम्बली का इज़्ज़त कर रहा हूँ, अगर मैं लेजिस्लेटिव असम्बली गिलगित बल्तिस्तान का इज़्ज़त कर रहा हूँ, अगर मैं पार्लियामान सेनेट का जो इन्होंने इधर कमीशन 2008 से 2013 की हुकूमत में तमाम सियासी जमातों ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा कमेटी फॉर्म किया जहाँ हर किसी का नुमाइंदगी थी, MQM का नुमाइंदगी थी। इन्होंने हर एक सूबा का केस में तहकीकात किया, हर सूबा को जो हर मौक़िफ़ को कॉन्टेक्स्ट में रख के हाँ या ना कहा। जहाँ तक मुझे याद है एक ही सूबा पे उस कमेटी ने। तो अगर मैं तमाम सूबों के करारदाद को, पार्लियामान के करारदाद को एहतराम करूँगा, क्या मैं अपना सिंध का करारदाद का ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें चल रही हैं, बातें चले, मुझसे वोट मांगेंगे तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में अपना वोट दे सकूँगा कि जो कॉन्टेक्स्ट मेरे सामने सवाल आया है। बिलावल साहब एक गुजारिश है, क्या सिस्टम सवाल मेरा सख्त है थोड़ा सा। आपने देखा इशारा आ गया। पीपल्स पार्टी ने इस सारे सेशन में, पिछले तमाम सेशन में हुकूमत को सहूलतकारी दी, तरामीम पास करवाई 26 साल में। उसके बावजूद आपसे मुराद पीपल्स पार्टी ने कहा निजकारी ना करें। जिस चीज़ को पीपल्स पार्टी ने पॉइंट आउट किया, इस हुकूमत ने वो काम करके दिखाया। अब आप कह रहे हैं हम इनके साथ कानून साजी में ताउन नहीं करेंगे। 160 अरकान उनके पास पूरे हैं, सादा अक्सरियत उनके पास है, तो फिर आप किस तरह उनकी कानून साजी में रुकावट डाल सकते हैं? वो करें, वो अगर वो कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर, अगर वो चाहते नहीं है पीपल्स पार्टी का वोट तो भले करें। आपके नुक्ते नज़र में ये होगा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का सहूलतकारी की। आपका राय ये हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के कानून साजी या आइन साजी में मदद की। आप हुकूमत से ये सवाल पूछें, क्या उनको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी सहूलतकारी की? वो तो जगह जगह कोई दूसरा पैगाम पहुंचाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत से रुकावटें डालते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत एतराज़ होते हैं। और आपको एक तो ऐसे तो याद होंगे कि चीज़ें या ख्वाहिशात जो हुकूमत के थे जो ना हो सके, तो वो कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के बग़ैर। तो ये तो जमहूरियत का एक पहलू है, एक सिलसिला है, हम भी देखेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये कि जो हमारे एतराज़ात हैं, हमारे एतराज़ात को एड्रेस नहीं किए गए, अगर हमारा एतराज़ात को एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि मेरा एक मेंबर भी जाके उनका कोई एक लेजिस्लेशन पास करे, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो। अगर किसी तरीके से पास करे भी सही तो ख़ुद जाके वालिद साहब को, सदर पाकिस्तान को मना लें या वो दस्तखत भी कर ले। अब मैं नहीं चाहता कि आम सूरत हाल, मैं तो इस कन्वर्सेशन किस बात पे शुरू किया कि मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान फ़ाल हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान फ़ाल हो तो इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और इत्तेफाक़ राय से
चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो जो भी काम, वो करने की कोशिश करें। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती, शायद किसी भी जमात ज़ोर ज़बरदस्ती को वो कायल कह सकेंगे, मुझे आप ज़ोर ज़बरदस्ती अभी तक नहीं कर सकते। सर ये बताइएगा कि आपका एक रीसेंट बयान था कि आपको वज़ीर आज़म से कोई शिकवा नहीं है, तो अगर वज़ीर आज़म से शिकवा नहीं है तो आपका शिकवा किससे है? और दूसरा, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तो सेम पेज पे नज़र आते हैं और उससे निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं लगता, तो क्या सियासी कुव्वतों की वजह से कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि वज़ीर आज़म जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, आई थिंक आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हो। मैंने वज़ीर आज़म के बारे में ये कहा था कि मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं समझता हूँ उसका नीयत सही है, काम भी करना चाहते हैं और हमारा इश्यूज़ भी एड्रेस करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बट उनके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब के अपनी कुछ कोशिशों को नाकाम बार बार कराते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म साहब को ये एहसास होता है या नहीं, लेकिन ये मेरा कमेंट था। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, होगा, मैं उस पर आपसे ज़्यादा या इनसे ज़्यादा नहीं सॉर्ट ऑफ आपको एक तबसरा या कुछ दे सकता हूँ। मैंने अपना एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज समवन जो कि देख भी सकता है, सुन भी सकता है, पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या, लेकिन कुछ तो है। अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, कोई मसला है, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, फिर मैं गलत था। अगर कुछ है तो सामने आज नहीं तो कल आ जाएगा। मैं वो सच सवाल किया आपने। मकसद ये है कि मैं चाह ये रहा हूँ कि बाकी चीज़ें अपनी जगह, जो हमारा काम है, जो पार्लियामेंट का काम है, वो हम करना शुरू करें। और कम से कम जो ये एक मजाक बन गया है कि धांधली की जो इल्ज़ामात वो ना सिर्फ अपोजिशन बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से उठाए जा रहे हैं। ये इम्प्रेशन धांधली करके फिर ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, हारते हैं तो रोते हैं। एक तो हम जीते भी, तो आपने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था ना, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, वो जीता हुआ इलेक्शन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल में तब तो ज़्यादा नरम था। फंडामेंटली हमने इस शिकायत को दूर करना है। मैं चाहता हूँ कि चले आज जितने भी पेजेस हो, जो भी हो रहा है, कल भी इलेक्शन होना है, वो इलेक्शन हो तो एटलीस्ट हम ये जो एतराज़ात होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, और इसमें हर किसी का फ़ायदा होगा। बट साहब आपका, बट साहब से हमने एक पाकिस्तान में एक पावर शेयरिंग फार्मूला है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, कि जहाँ जिस जमात की अक्सरियत होगी हुकूमत उसकी होगी, और जो आईनी ओहदा होगा वो दूसरी जमात के पास होगा। ये हमने सिंध में देखा, पंजाब में देखा, के बलूचिस्तान, और अब जीबी में भी शायद उस पर अमल दरामद हो रहा है, अमल हुआ नहीं है। तो क्या आज़ाद कश्मीर की हद तक भी ये पावर शेयरिंग फार्मूला जाएगा? I wouldn't call power sharing, but I would say that in Gilgit Baltistan ऐसे ही एग्रीमेंट, एतराज़ात और बाकी सब कुछ के बावजूद टाइमली तय हुआ था और उस वक्त हुआ था। आज़ाद कश्मीर में ऑब्वियसली हमारा एतराज़ात आपके सामने तो सबसे ज़्यादा है, इनके सामने अभी मैंने रखा है। मैंने नोट ये भी किया कि इन्होंने हमारा एतराज़ात दूर करने के कोशिश नहीं की। दूर करने तो एतराज़ दूर करने के, एड्रेस करने के तो दूर की बात है, इन्होंने तो जो हमारे एतराज़ात थे, जो हमने खर्चात ज़ाहिर किए कि शायद ऐसे हो सके, इन्होंने वही किया हमारे साथ। लेकिन ये तमाम चीज़ें के बावजूद आपने नोट किया, अगर मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला करता आज़ाद कश्मीर में कि हम अपना ओथ नहीं लेंगे, तो क्या होता? अगर सदर आज़ाद कश्मीर ये फ़ैसला लेता कि मैंने उनको ओथ नहीं देता, तो क्या होता? लेकिन हमारे ख़िलाफ़ किए धांधली के बावजूद, मेरे कारकुन को शहीद करने के बावजूद, मेरा उसी सदर पर हमला करने के बावजूद, मेरे MNA पे गोली चलाने के बावजूद,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन प्रोसेस को तस्लीम किया, पार्लियामान का हिस्सा बना, आज भी उधर बैठे, इसके बावजूद कि आपका आधा डिवीज़न में इलेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए कि हम आज़ाद कश्मीर का कदर करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर का अहमियत जानते हैं। तो उस हद तक हमारे एतराज़ात के साथ साथ हम इनके जो हुकूमत है, जो उनको मैंडेट दिया गया है या जो छीना गया है, तो उनका अब मैंडेट है, वो करे उसके साथ जो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसलिए कि इतना मुतनाज़ा हो गया, उनके लिए मुश्किल होगा इतना अहम इश्यूज़ को इतना मुतनाज़ा इलाके में हम चल रहे थे कि ये प्रोसेस हमारा बात भी हुआ था इलेक्शन से पहले, और ख्वाहिश ये था कि जितना गैर मुतनाज़ा, जितना पुरअमन हम ये इलेक्शन करवा सकें। तो ये अहम काम जो आगे आपने करना है इसी असम्बली में, उनको आसानी पैदा हो, वो मुझे उनके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। पावर शेयरिंग मेरा नहीं ख्याल कि मेरा पार्टी जबकि मौजूद है, दूसरा हर जगह मौजूद है, हमने GB में और आज कल भी अगर वो चाहते हैं जो उन्होंने हमसे तय किया वो बिल्कुल करे, सिंध में, बलूचिस्तान में, ये पंजाब में हमने ये किया। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान को, पार्लिमानी पार्टी को कायल करे कि उसी किसी फार्मूला के तहत हम चले। मेरा ख्याल इस वक्त ये है कि हम अपोजिशन में बैठे, वो हुकूमत चला दे। जैसे मैं कह रहा था, इन्होंने कोशिश भी नहीं की कि हमारे एतराज़ात को किसी कॉन्टेक्स्ट में दूर करें। अगर मेरा एतराज़ात को आप दूर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो मुझे फिर ना उधर या ना इधर कोई महसूस हो रहा है कि मुझे उनका कोई कल तो फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की पोजीशन चेंज हो सकती है। नहीं, अगर हुकूमत हमसे रब्ता करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मैं अगर अपोजिशन लीडर से मिल सकता हूँ, सेनेट के अपोजिशन से मिल सकता हूँ, नेशनल असम्बली से मिल सकता हूँ, अगर मुस्लिम लीग का डेलीगेशन या रहनुमा मेरे पॉलिटिकल पार्टी से रब्ते करते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता कि वो ना मिले। लेकिन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ हो। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंसाफ नहीं होगा तब तक मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं बस वैसे ही वापस जाके बैठ जाऊं और तालियां बजाने शुरू कर दूं। ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हद तक आपने की, पूरे पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इमरान खान के चाहने वाले भी लोग हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, तो कौन इनको एक पेज के ऊपर बिठाएगा, एस्टैब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को? कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की? I think truth and reconciliation is a very important concept. हर किसी मुआशरे में जहाँ आपने political stability कायम करना है तो truth and reconciliation या कोई और नाम भी दे दे, मेरा ज़हन में यही नाम आया, मगर इस प्रोसेस को फॉलो करना इसी नीयत के साथ कि आपने सच भी सामने लेकर आना है, हर किसी को जवाबदेही का ज़रूरत भी है। ऐसे नहीं है कि कोई अपना कानून हाथ में ले ले और हम इनको, दैट्स नॉट द प्रोसेस। आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का मतलब है आप ट्रूथ जब तहकीक करते हो और उसमें कोई मुजरिम सामने आता है तो मुजरिम के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी होता है, मगर ओवरऑल वो मुआशरे को, वो स्टेक होल्डर्स को एक रिकन्सिलिएशन का रास्ता भी दिखाते हैं कि जो मुजरिम हैं, जो कानून किसी ने अपने हाथ में लिए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जिन्होंने नहीं की उनके लिए एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस। जो कश्मीर का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट था, मुझे बहुत दुख होता है कि मुझसे ये नहीं हो पाया और मैं जगह जगह जाके हर तरफ कायल करने के इस पॉइंट पे लेकर आना चाह रहा था कि तमाम एहतजाज करने वाले और हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस पेज पे आ जाए कि हम बात करें। आप ना रुकावट हर जगह लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि ये किसी की कोई कमी नहीं होगा, किसी को कोई शान नहीं होगा, किसी को कोई सैक्रिफाइस, कोई पीछे नहीं, कोई शान में, नथिंग विल हैपन। ये हर किसी का कद में इजाफा होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर, कश्मीर के लिए बेहतर होगा कि ये फॉर्मूला फॉलो। आप इतने सवाल के चलाएंगे ही भी नहीं, लेकिन खवातीन जो वहाँ पे उनको जो PhD स्कॉलर्स हैं, एक किसी को तो गोली मार दी, कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनका कोई इश्तिहार अंगेज बयान नहीं है, सिर्फ शायर और शायरी उन्होंने की है, उनका नाम 4th शेड्यूल में डाला जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है। हुकूमत, आपने वहाँ इलेक्शन भी लड़ा है,
आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस वक्त जो सूरत हाल है कि पूरे लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो मुश्तइल नहीं हो रहे। तो कहाँ है ह्यूमन राइट्स और कहाँ है डेमोक्रेसी? आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? सर पीपल्स पार्टी एक मिनट ज़िमनी फिर बोल जहाँ तक दिस इज़ एग्जैक्टली वाई आई हैव बीन एडवोकेटिंग शुरू दिन से कि हमारा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए ताकि इस किस्म के वाक़ियात का तहकीकात हो। मैं जब वहाँ था भी यही सुनता था, एक तरफ से ये सुना जाता था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ से ये भी फैक्ट है कि पुलिस शहीद हुए, फ़ौज शहीद हुए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएं। जिन्होंने गलत किया, जहाँ से गलत किया, जो भी हो, अगर मैं भी हूँ, मेरे ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। और जो बेगुनाह है, जो एहतजाज या इवन वो लोग जो एहतजाज और हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, अगर आप 60 डेज़ में आप क्लिफ्टन में 60 डेज़ इंटरनेट बंद करें, वो आप कश्मीर भूल जाएंगे। अब आजकल का ज़माना में जहाँ 60% आपका पॉपुलेशन नौजवान है और वो 60% का पॉपुलेशन का 90% टाइम इस डिवाइस पे होता है। अब बाकी छोड़े कि कोई ख़ुद मुख्तार बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, वो अपना फ़ोन चलाने के लिए बाहर निकल के एहतजाज में आ जाएंगे। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन या कोई भी कमीशन ऐसा कोई फॉर्म किया जाए, तब तक एहतजाज करने वाले को भी मौका दिया जाए कि वो घर चले जाएं। उनको ये और तब तक ये कमीशन मुकम्मल अपना काम नहीं करेगा तो फिर कोई ऐसा जैसे आप शिकायतें कर रहे हो सामने नहीं आएंगे। और वो ये हुकूमत को भी और रियासत को भी ये यकीन दहानी हो कि एहतजाज करने वाले ये कमीशन की कॉन्सेप्ट को तस्लीम करते हुए उठ भी जाएंगे, वादा भी करेंगे कि वो ना कोई एहतजाज, ना कोई ऐसे कदम उठाएंगे जब तक ये कमीशन अपना काम पूरा ना करे। तो आई डोंट सी व्हाई वी कांट एड्रेस दिस इशू एंड आई होप कि अब जब आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनने जा रही हैं, वो अपने शिकायतें अपनी जगह, आई होप कि ये इस इशू पे मेरा इस तजवीज़ को मान लें। जो करारदाद चले पिछले असम्बली ने पास किया, वो उसी करारदाद को अगर उनके पास कोई नया करारदाद है वो पास करवा दें, लेकिन इस इशू को ऐसे आप नहीं छोड़ सकते। इतने सवाल के जवाब नहीं चलाएंगे उस्मान। सुन रहा सॉरी प्लीज। मसला ये है सर कि एक आप कोलिशन के अंदर है, जमहूरी जमात के आप ज़ाहिर है कि लीडर हैं, और आपका जो अभी तक कोशिश है बेनज़ीर भुट्टो साहब की वो जमहूरियत के लिए रही है इस वक्त। क्या वज़ीर दाखिला का ये बयान जो सामने आया, ये वज़ीर दाखिला का कि ये सिस्टम फेल हो चुका है, उन्होंने ऑफिशियली मतलब एक अनाउंस कर दिया, क्या इस जमहूरी निज़ाम की लपेटने जाया जा रहा है इसको, और क्या कोई सदारती निज़ाम लाने की कोशिशें हो रही हैं? 18वीं तरमीम वापस क्यों हो रही है? उसकी जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ज़ाती कोशिशों से पार्लियामान को जो ट्रांसफ़र की थी पावर, आज उनको वापस लपेटने की कोशिश हो रही है। और बताया ये जा रहा है कि सूबे जो है उसमें तावन नहीं कर रहे, चाहे वो दहशत गर्दी हो, पानी के इशूज़ हो, दीगर चीज़ें हो, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसमें एक वाज़ेह स्टांस आप बीइंग द चेयरमैन पीपल्स पार्टी, क्या कोलिशन के अंदर भी आप देखिए, जहाँ तक एक तो एक भाई को आप दूसरा भाई से ना लड़वाया करें। दूसरा बात यह है, ये सिस्टम कोलैप्स जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया काफ़ी भारी है। और ये अब मोहसिन भाई इतना सियासत में शायद तजुर्बा नहीं रखता, पर ये काफ़ी हैवी अल्फाज है। और ऑब्वियसली इसके दो माने हैं। या सिस्टम कोलैप्स का मतलब है कि मौजूदा सिस्टम, और उस मौजूदा सिस्टम का सबसे नामवर शख्सियत अगर कहता है कि सिस्टम कोलैप्स, तो फिर कौन एतराज़ कर सकता है कि मैं किसी को उल्टी गिल्टी का कह रहा था। और एक्सक्यूज मी, और अगर मौजूदा सिस्टम की बात नहीं कर रहा तो फिर चले नहीं कर रहा, तो फिर वही 1973 की
कॉन्स्टिट्यूशनल का शायद बात कर रहा हूँ और लगता है क्यों कैसे, लेकिन अगर वो बात भी कर रहा है, उस सिस्टम को आपने चलने कब दिया? आपका मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है आपकी आइन। आप उस आइन को आप गिन भी नहीं सकते हैं कि कितने दफ़ा आपने उस आइन को, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। रीढ़ की हड्डी को तोड़ते रहते हो, फिर कहते हो कि देखो सिस्टम कोलैप्स्ड है। वो कोलैप्स नहीं, उसका मतलब है कोलैप्स करवाया गया। अब मैं इन दोनों डिबेट्स में गए बगैर कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा भी रहा हूँ। आप मुझे कोई जो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान का बिल्कुल इम्प्रेसिव किरदार हैं, जो तमाम ज़ायनिस्ट साजिशें हैं उनको नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं, अभी तक कामयाब नहीं हुए और उसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब खुद कह रहे हैं दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में मैं जानता हूँ कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, हमारा क्या सबसे परेशान कौन बात था जो हम दुनिया को कहते रहे कि पहली दफ़ा जो सब नेशनलिस्ट फैक्शंस हैं, मतलब BLA, सिंधी नेशनलिस्ट और TTP, उनका नेक्सस बन रहा है और हमला करना चाहते हैं आप कराची में या बलूचिस्तान में, तो वो एक दूसरे से कोऑपरेट करके और बैठे कहाँ हैं? अफगानिस्तान में। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पाकिस्तान को कामयाब देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इजराइल का ज़ायनिस्ट की साजिश जो ईरान में हो रहा है वो भी नाकाम करे। जो भारत ने ऑपरेशन संदूर में शिकस्त खा के अब ये हमारे अंदर दाखिल होके ये सब नेशनलिस्ट फैक्शंस को, अलीदगी परस्त कुव्वतों को वो हवा डालने की कोशिश करे कि उनका साजिश भी नाकाम। एंड अगर मैं ये डिबेट जो आपने की अगर मैं इसमें पड़ गया ना, तो मुझे लगता है कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में हम आसानी नहीं, मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। सिस्टम का कोलैप्स होना या ना होना एक एकेडमिक डिबेट है, वो हम डिबेट किसी और दिन रख ले। इस वक्त हम सब इस किश्ती में पाकिस्तान जिसका नाम है, इसमें अब सवाल है हमारा मुल्क की क़ियादत, हमारा वज़ीर आज़म, हमारा फील्ड मार्शल, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो जो ईरान की सूरत हाल में उसमें भी मसरूफ़ है। हम भी चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी की मुकाबला सही अंदाज से करे और मुझे डर ये है कि अगर हमसे ये संभाला नहीं गया और हालात मज़ीद बिगड़ गए तो मईशत का हालात आपके सामने आज जैसे हैं। अगर आप कल भी अमन कायम करें, 10 साल लगेंगे कि मैं इस मुल्क में वो ग्रोथ लेकर आऊँ, वो तरक्की लेकर आऊँ जिससे मैं तमाम नौजवानों को रोज़गार दिलवा दूँ। अगर आप कल अमन नहीं कायम करते हैं तो इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं, इस वक्त जो महंगाई है वो आपके सामने है। 3 महीने बाद क्या होंगे, 6 महीने बाद क्या होंगे। मैं चाहूँगा एज अ पॉलिटिशियन, एज अ स्टेक होल्डर इन द गवर्नमेंट, एज सिटिंग इन पार्लियामेंट, कि जितने पाकिस्तान के अवाम को मैं अपने साथ रख सकता हूँ, जितना कोalition आप अपने साथ रख सकते हैं उतना ही बेहतर। तो मैं जब मिलता हूँ, मौका नहीं मिला तो मैं यही तजवीज़ दूँगा। बाकी हम पार्लियामेंट में हैं, जगह जगह है, कोई और भी तजवीज़ हो, किसी और का राय मुझसे बेहतर होगा, वो अपने राय भी लेकर आ सकते, मैंने उस पर कोई मसला नहीं है। अब आप इजाज़त दे दें। थैंक यू।